Students, how are you all? I hope you all are fine and well. Today the video is coming late because from last 2 days I am not feeling well. Okay, so that's why today I have sent the video late because it take a lot of time in making the video as well as I woke up late in the morning. Okay, so let's get started. Yesterday we were discussing the chapter number 3 of your DK Goel as well as chapter unit 2 from your NCERT book, which is named as theory basis accounting. ठीक है, theory basis accounting. So what does this theory basis accounting mean? I have told you that these are the theory according to which numericals are solved in accountancy, or else we can say these are the theories on which basis accounting is done. Means these theory provide a specific guidelines, rules and regulations which should be followed during the time of accounting. Okay, so this was the meaning of the chapter. As well as yesterday I have told you what is gap. Gap means generally acceptable accounting principles. Generally acceptable accounting principle, generally accepted accounting principle. It means that there are some rules and guidelines. ठीक है, there are some rules and guidelines which has been provided to the accountants. ठीक है, which have been provided to the accountant for the purpose of accounting. Means whenever accountant is doing the accounting work, he should know these guidelines and these what we can say, these principles and these rules and regulation, so that accounting can be done in significant manner without any problem. As well as one more thing, if you will not follow the gap means generally accepted accounting principle, then your three qualitative characteristics are affected. Number one, your affection will be on uniformity. Second, your consistency. Third, your comparison also. Okay, or comparison not, reliability. So uniformity means it will not remain same. Consistency means it keeps on changing. And at the last, what is given? Relevancy. Relevancy means it will be not dependable. We cannot be liable on it. Okay, as well as yesterday I have taught you these fundamental accounting principle assumptions also. Assumptions means what do we think, मतलब हम क्या मान के चलते हैं, क्या मान के हम अकाउंटिंग को करते हैं. तो पहला गोइंग कंसर्न एजम्पशन था, इसको मैंने डीप में बता दिया था कि बिजनेस हमारा लंबे समय तक चलता रहेगा. ठीक है, हम ये मान के बिजनेस को करते हैं. कंसिस्टेंसी एजम्पशन, जो हमारा अकाउंटिंग करने का मेथड है वो हमेशा एक जैसा रहेगा. ठीक है, उसके बाद अक्रूवल एजम्पशन. अक्रूवल एजम्पशन का मतलब क्या होता है कि जिस समय, ठीक है, रेवेन्यू अर्न की गई है उस समय हम क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग करेंगे, ना कि जब हमें पैसा मिला है तब हम रिकॉर्डिंग करेंगे. ठीक है, जिस समय हमने सामान बेचा उसी समय हम दिखा देंगे कि पैसा हमारे पास इतना आया है. ठीक है, हम ये नहीं, जिस दिन पैसा मिलता है उस दिन हम उस, जैसे पैसा हमें 2020 में मिला और हमने सामान 2019 में बेचा, तो हम वो जो 2020 में जो पैसा मिला 2019 का ही पार्ट मानेंगे, 2020 का पार्ट नहीं मानेंगे. अब देखिए कुछ प्रिंसिपल्स थे. अकाउंटिंग एंटिटी मैंने आपको बता दिया था, मनी मेजरमेंट भी मैंने आपको बता दिया था. अब आज जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो शुरू करने जा रहा हूँ थर्ड वाले प्रिंसिपल से, जो कि है आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल पीरियड. तो चलिए अब हम लोग शुरू से शुरू करते हैं. तो एक बार आपको इसका भी बेसिक रिकैप. अकाउंटिंग एंटिटी का मतलब क्या होता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं. बिजनेसमैन जो बिजनेस को पैसा देता है वो एज अ क्रेडिटर एक्ट करता है, और बिजनेस की लाइबिलिटी में जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस की लाइबिलिटी होती है कि उसको वापस करे. अगर और डीप में पढ़ना तो लास्ट प्रीवियस वीडियो में चले जाएगा. मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल आपका कहता है कि जिन चीज़ों की फाइनेंशियल वैल्यू होती है उन्हीं को केवल हम रिकॉर्ड करते हैं. ऐसी चीज़ें जो हमारे लव, फेथ, सिंपैथी है, जिसकी कोई फाइनेंशियल वैल्यू नहीं है, ठीक है, उसको हम नहीं रिकॉर्ड करते. अब आता है आपका आज का नया टॉपिक, जो कि है आपका अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल. क्या है आपका? अकाउंटिंग प्रिंसिपल पीरियड. तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल पीरियड का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल पीरियड का मतलब होता है, देखिए बिजनेस की आप मान के चलते हैं गोइंग कंसर्न का वो क्या बोलते हैं प्रिंसिपल आप यूज़ करते हैं. गोइंग कंसर्न में आप देखते हैं कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा. तो क्या हम बिज़नेस की अकाउंटिंग तब करेंगे क्या जब बिज़नेस बंद होगा तब करेंगे? नहीं, बिज़नेस की तो लाइफ साइकिल बहुत लंबी है. अब इसी लाइफ साइकिल को हम छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिस पार्ट के आखिर में हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं और बताते हैं कि इस पार्ट का प्रॉफिट ये रहा, इस पार्ट का लॉस ये रहा, इस पार्ट में इतने एसेट्स थे, इस पार्ट में इतनी लायबिलिटी थी. ठीक है, यानी कि बिज़नेस की लाइफ साइकिल, जैसे हमारा बिजनेस, जैसे मेरे बिज़नेस 10 साल मुझे बिज़नेस करना है तो मैं क्या करूँगा, उसको 10 पार्ट में कन्वर्ट कर लूँगा अकाउंटिंग के बेसिस पे. यानी कि 10 पार्ट, एक साल का एक मैंने बना लिया, तो इस साल के आखिरी में क्या करूँगा, मैं उसी करेंट ईयर का वो निकाल दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है, ऐसा नहीं कि जब बिजनेस में बंद करने जाऊँगा तब मैं उसका निकालूंगा. नहीं, हम इंटरप्राइज की लाइफ को पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और उसी पार्ट को कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड.
जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, हम लोग क्या मान के चलते हैं बिजनेस का लाइफ पीरियड 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का, 1 साल का हम यूजुअली मान के चलते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च का। 31 मार्च को आपको अकाउंटिंग करके सब कुछ क्लोज कर देना होता है, फिर अगले साल में आप शुरू करते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग पीरियड, इसका डेफिनेशन देख लीजिए। अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल इंडेफिनिट लाइफ ऑन एंटरप्राइज इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। अब आपका आता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है? कुछ भी ना छुपाओ। फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है? कुछ भी ना छुपाओ, ठीक, कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अपार्ट फ्रॉम लीगल रिक्वायरमेंट ऑल सिग्निफिकेंट एंड मटेरियल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर ऑफ द एंटिटी शुड बी कंप्लीटेड डिस्क्लोज इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अकम्प्लेइंग नोट्स टू द अकाउंट्स। तो इसका मतलब आपका क्या होता है कि देखिए, जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, जो भी बिजनेस में क्या कहते हैं ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको लगता है कि ज़रूरी है, ठीक है, या जो भी चीज़ आपके बिजनेस में हो रही है, उन सारी चीज़ों को आपको डिस्क्लोज़ करना होता है। डिस्क्लोज़ करने का मतलब आपको पता है क्या होता है? डिस्क्लोज़ करने का मतलब होता है कि आपको लोगों को बताना होता है। यानी कि जो भी लोग आपके बिज़नेस में वर्क कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, या जो भी आपने अपनी अकाउंट्स की बुक बनाई है, उसमें आप सब कुछ लिखिए, कुछ चीज़ छुपा के मत लिखिए, ठीक है। इससे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मतलब ये आपका, अगर आप कोई चीज़ छुपा के लिखते हैं तो वो एक तरीके से आपका विंडो ड्रेसिंग में आ जाता है, ठीक है। नहीं, आपको विंडो ड्रेसिंग नहीं करनी, आपको फुल डिस्क्लोजर करना है। फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है? सारी चीज़ों को, जितने भी आपके लोग हैं, ठीक है, जितने भी लोग आपके हैं, उन सभी लोगों को आप फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग में क्या करेंगे? सब कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। और इन्फॉर्मेशन उनको कैसे मिलेगी? जब आप अकाउंट्स की बुक में सब कुछ सही सही नोट करेंगे। तो एक बार देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अपार्ट फ्रॉम लीगल रिक्वायरमेंट, यानी कि लीगल रिक्वायरमेंट को भी छोड़ के, ठीक है, क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट होगी तब तो आपको देना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा, लेकिन इसको छोड़ के ऑल सिग्निफिकेंट एंड मटीरियल इन्फॉर्मेशन, मटीरियल का मतलब है ज़रूरी, ठीक है, all significant and material information relating to the economic affair of the entity should be completely disclosed। यानी जो भी बिजनेस से रिलेटेड, जो भी सारी, एंटिटी का मतलब बिजनेस यहाँ पे हो रहा है, तो बिजनेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी सामान हुआ, उसको हम अकाउंटिंग के बुक में नोट करेंगे, सब कुछ, कोई चीज़ छुपाएंगे नहीं। अब जो आपका फिफ्थ आता है वो आता है आपका मटीरियलिटी प्रिंसिपल। अब आप देखिए बच्चों, ये आपका सबसे कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है, मटीरियलिटी प्रिंसिपल, क्योंकि यार ये प्रिंसिपल ऐसा है जो कि मेरा भी टॉपिक अभी कुछ दिन पहले ही क्लियर हुआ है, ठीक है। इसको जब मैं क्लास 11th में था, टीचर्स ने बोला थ्योरी पोर्शन है, बाद में पढ़ाएंगे, तो मैंने भी बोला कि चलिए ठीक है, बाद में पढ़ाएंगे, बाद में पढ़ाइएगा, और वो बात कभी मैं आया ही नहीं, और उसके बाद इसको कभी मैंने पढ़ने की कोशिश नहीं की। अभी लास्ट फ्यू ईयर, मतलब 2017 में मैंने जब इसको पढ़ना शुरू किया तो भी मुझे अच्छे से नहीं समझ में आया था। इसको अभी मुश्किल से लास्ट ईयर या उसके लास्ट ईयर मैंने जब अच्छे से ढंग से बैठ के पढ़ा है, समझा है, तब ये जाके मुझे मटीरियलिटी प्रिंसिपल समझ में आया है, ठीक है। लेकिन आप लोग को आज एक बार में ये समझ में आ जाएगा। चलिए, थैंक मी लेटर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मटीरियलिटी प्रिंसिपल जो आपका होता है, ये होता है कि सबसे पहले मटीरियलिटी का मतलब जानिए क्या होता है। मटीरियलिटी का मतलब होता है इम्पॉर्टेंस, रिलेटिव इम्पॉर्टेंस, यानी कि किसी चीज़ की हमें कितनी ज़रूरत है, हमारी लाइफ में कितनी उपयोगी है वो चीज़, कितनी यूज़फुल है, उसको उसकी मटीरियलिटी बोलते हैं। अब देखिए, मेरे बिज़नेस की वैल्यू है 2 लाख रुपए। मेरे बिज़नेस की वैल्यू कितनी है? 2 लाख रुपए है। अब मेरे बिज़नेस की वैल्यू 2 लाख रुपए है। अब एक चीज़ देखिए, अगर मैं उसमें से 50,000 का ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, अगर मैं उसमें से 50,000 रुपये का कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं है? इम्पॉर्टेंट है, वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो मेरे बिज़नेस का लगभग 1/4 कवर कर रहा है। समझिएगा, वो मेरा क्या कर रहा है? बिज़नेस का 1/4 पोर्शन लगभग वो कवर कर रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं 2 रुपये 10 रुपये की अकाउंटिंग करूँ, तो वो मेरे बिज़नेस के लिए मटीरियल नहीं है। समझिएगा, वो मेरे बिज़नेस के लिए मटीरियल नहीं है, वो उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो उसकी अकाउंटिंग करना ज़रूरी नहीं है। समझिएगा, जो चीज़ें बिज़नेस के लिए यूज़फुल होती हैं उसको ही नोट डाउन करना होता है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक है। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि फालतू की चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो अंडरस्टूड है, लेकिन जो चीज़ मटीरियल है आपके बिज़नेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको हमें नोट करना ही करना है, और किसी तरीके से हमें उसको नोट करना ही करना है।
ठीक है। तो सब कुछ डिस्क्लोज़ करने से अच्छा है केवल रिलेटिव इम्पॉर्टेंस की चीज़ें ही नोट की जाए। अब जैसे देखिए, अगर मेरे पास 10 करोड़ रुपए है और मैं क्या कहते हैं उसमें से 1,000 रुपये खोवा दूँ या 1,000 रुपये का कोई ट्रांजेक्शन करूँ, तो मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। तो मैं चाहूँ तो उस 1,000 को अवॉइड कर सकता हूँ या उस 1,000 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वहीं पे मेरे पास अगर 10,000 रुपये है और मैं 1,000 का ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है ये मेरे लिए, समझ में आ रहा है? समझने की कोशिश कीजिएगा, इम्पॉर्टेंस है मेरी। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, प्रिंसिपल क्या कहता है। तो एक बार आपको मैं इसकी मीनिंग बता देता हूँ। डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट इज कंपल्सरी बट इट डज नॉट इम्प्लॉय दैट इवन दोज फिगर्स विच आर इररेलेवेंट टू बी इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, यानी सब कुछ बताना ज़रूरी है, पर कुछ ऐसे जो खर्चे होते हैं जो इररेलेवेंट होते हैं उनको बताना ज़रूरी नहीं होता। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दोज आइटम और इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड दैट हैव मटीरियल इफेक्ट एंड रेलिवेंट टू द यूज़र्स। यानी कि वही चीज़ बताना होता है जो यूज़र्स के लिए ज़रूरी होती है, जो मतलब क्या कहते हैं अकाउंट्स के बुक पढ़ने वालों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, फालतू की चीज़ें लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे बिजनेस के लिए जो रेलेवेंट है, जो हमारे लिए कंपलसरी है, वही हम नोट डाउन करेंगे। सो आइटम हैविंग एन इनसिग्निफिकेंट एफर्ट और बीइंग इररेलेवेंट टू द यूज़र्स नीड टू बी डिस्क्लोज सेपरेटली, दीज मे बी मर्ज्ड विद अदर आइटम्स। यानी कि देखिए, जो सिंपल सी चीज़ है, जो चीज़ हमारे बिजनेस के लिए ज़रूरी है और जो लोगों को क्या कहते हैं, जिसको पढ़ने में लोगों को इंटरेस्ट है, वही चीज़ें हम अपने जो बुक्स है उसमें नोट करते हैं। ठीक है, और वो चीज़ें कौन सी होती है जिसकी इंपॉर्टेंस है हमारे बिजनेस में, इसलिए हम नोट करते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी वालों ने किस पेन बंटवा दिया 5-5 रुपये वाली, कोई इफेक्ट पड़ा? उसको नोट करके दिखाएंगे, अकाउंटिंग करेंगे क्या मैंने अपने ऑफिस में पेन बंटवाई? नहीं की। अब वहीं पे कोई छोटा बिजनेस है, वो पेन बंटवा रहा है, तो उसकी अकाउंटिंग वो करता है। तो एक बार आप इसको देखिएगा, समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे दोबारा से पूछिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना बहुत है। अब बाकी मैं आप लोग का कल शुरू कराता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़िएगा, रीड करिएगा और उसके बाद मुझको बताइएगा कैसा रहा। थैंक यू क्लास।